ओम शांति। आज के बाबार 17-12-2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महाबाक्য बाबा बोलছেন যে তোমরা এতদিন নিজেকে দেহ ভেবে এসেছো, এখন বাবা তোমাদেরকে সত্য রাস্তা দেখিয়েছে যে তোমরা দেহ নয়, তোমরা আত্মা। তো আত্ম অভিমানী হওয়ার বারবার চেষ্টা করো। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমাদের দিল থেকে সব সময় এটাই শব্দ যেন বেরোয় যে বাহ বাবা ওয়াহ ওয়াহ, সতগুরু বাবা ওয়াহ। কেন দুনিয়াতে অনেক গুরু আছে, কিন্তু সতগুরু বাবা একজনই আছেন যিনি তোমাদেরকে পুরো পবিত্র বানিয়ে পরমধাম নিয়ে যাচ্ছেন। তো পুরো মহিমা সতগুরু বাবার আছে, তাই তোমাদের দিল থেকে মুখ থেকে সব সময় এই শব্দটা বেরোনো উচিত যে ওয়াহ সতগুরু বাবা ওয়াহ। তারপরে বাবা বললেন যে বাচ্চে এমন কোনো চলন রাখো না, এমন কোনো চালচলন করো না যাতে বাবার নিন্দা হয়। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে তোমরা এখানে জিতে জি মরে গেছো, অর্থাৎ তোমরা নিজেকে দেহ না ভেবে এখন বারবার নিজেকে আত্মা ভাবছো। তারপরে বাবা বললেন যে বাচ্চে যে কখনো তোমরা বারবার যে নিজের নাম রূপে ফেঁসে যাচ্ছ, এই নাম রূপ থেকে এখন নিজেকে ডিট্যাচ করে নিজেকে আত্মা ভাবো। নিজের শরীরকে বারবার না দেখে, চেহারাকে বারবার না দেখে নিজেকে জ্যোতির্বিন্দু আত্মা ভাবো। তারপরে বাবা বললেন যে এখন সারা দুনিয়াই হচ্ছে একদম মূল্যহীন, দুনিয়াতে কোনো কিছুরই এখন আর মূল্য নেই। কেন পুরো দুনিয়া একদম বিনাশের মুখে পৌঁছে গেছে। বাবা বলছেন যে চারিদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, বিনাশের লীলা শুরু হবে, এমন এমন বম পড়বে যে সেই বমে বিভিন্ন রকম বিষ মেশানো থাকবে, আর সেই বিষের দুর্গন্ধে মানুষ মারা যাবে। বাবা বলছেন প্রকৃতি খুব রেগে আছে, প্রকৃতি তোমাদেরকে মানে এই পুরো দুনিয়াকে নানান রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা এই মানুষকে শেষ করবে, বিনাশ তো হবেই। তো এখানে আমার কোনো হাত নেই, প্রকৃতিকে তোমরা দূষিত করেছো, তো এখন প্রকৃতি তোমাদের উপরে প্রতিশোধ নেবে। তো এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো হবেই। তারপরে বাবা বললেন যে যারা এখন বাবার শ্রীমতে সম্পূর্ণভাবে চলছে তাদের হাত ভরপুর হচ্ছে, আর বাকি সবার হাত খালি। যদি কেউ ভাবে যে আমি এত ধন ইনকাম করে যাচ্ছি যাতে আমার 3 বংশ খাবে, আমার নাতি পুতি তাদেরও ছেলেমেয়েরা খাবে, তো বাবা বলছে সবার হাত খালি হয়ে যাবে, কারো নাতিপুতি খেতে পারবে না। কিন্তু তোমরা বাবার সেবা করছো, তোমরা বাবার শ্রীমতে চলছো, তোমরা জ্ঞান যোগের মধ্যে আছো, তো তোমাদের প্রতি মুহূর্তে ইনকাম হচ্ছে আর তোমাদের হাত ভরপুর হচ্ছে। তো এইভাবে বাবা আজকে খুব খুশির কথাগুলো বলেছেন। চলুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। বাবা বলছেন যে সতগুরু বাবা এসেছেন তোমাদের উঁচু ভাগ্য বানাতে, তাই তোমাদের চলন খুবই রয়্যাল হওয়া উচিত। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। বাবা বলছেন ড্রামার কি একটা প্ল্যান তৈরি হয়ে আছে, এই জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না। তো বাবা উত্তরে বলছেন ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। বাবা বলছেন যে পূর্ণ দুনিয়ার বিনাশের প্ল্যান হয়ে আছে, এটাতে কারো দোষ নেই। এই সময় বিনাশের জন্যে প্রকৃতি একদম জোরে রেগে আছে। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। বাবা বলছেন চারিদিকে ভূমিকম্প হবে, বাড়িঘর পড়ে যাবে, ফ্লাড আসবে, বন্যা আসবে, অকাল হবে, তো এইসব হবে। বাবা বলছেন बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो। বলছেন এই পূর্ণ দুনিয়া থেকে তোমার বুদ্ধিযোগ বের করে দাও। सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जी तेजी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। বলছে জিতে জি দেহের অভিমান ছেড়ে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করার
পুরুষার্থ করতে থাকো। আজকের মুরলির গান হচ্ছে हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। বলছেন তোমাদেরকে সেই রাস্তায় চলতে হচ্ছে যেখানে পড়ছো আবার তোমাকে উঠতে হবে, মায়া আবার তোমাদেরকে ফেলে দিচ্ছে, আবার তোমাদেরকে নিজের পুরুষার্থে উঠতে হবে। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। यह कौन सा गुरु है? বলছে কার রাস্তায় চলবে? তো গুরু যে রাস্তা দেখাচ্ছে, সৎগুরু বাবা যে রাস্তা দেখাচ্ছে সেই রাস্তায় চলতে হবে। তো বলছে কোন গুরুকে তোমরা পেয়েছো? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वह गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है, भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु, वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। বলছেন আসল সতগুরু তো বাবা আমি, এবং আমার জন্যই চারিদিকে কি হয় वाह वाह হচ্ছে। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे, सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। বলছেন যে এখন ভক্তি মার্গের যে গুরুরা আছে তারা মানুষকে গঙ্গা স্নান করতে বলে বা তীর্থযাত্রা করায়, কিন্তু পরমধাম পর্যন্ত তো কেউ নিয়ে যেতে পারছে না, বা আত্মাকে সম্পূর্ণ পাবন তো কেউ করতে পারছে না। এই কাজ তো শিব বাবারই আছে, তাই বাবাকে লিবারেটর গাইড বা সৎগুরু বলা হয়। जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि माँ में कम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। বলছে যদি সবাই জানতো যে সতগুরু এক ভগবান আছে তাহলে মানুষ নিজেকে गुरु बोलतो ना। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिनमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। तो बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। বলছেন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের যে আত্মা তাদেরকে বাবা এখন সত্যযুগের বাদশাহী দিচ্ছেন, তো বাকি সমস্ত ধর্মের আত্মাগুলোকে পরমধাম ফিরতে হবে। इसलिए सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है गति सद्गति दाता एक है, एक बाप की ही महिमा है। गति सद्गति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, तो यह भी समझ की बात है ना, परंतु यह बुद्धि देवे कौन। বলছেন যে গতি সদ্গতি দাতা তো বাবা, এবং সঙ্গম যুগে বাবা সবাইকে গতি সদ্গতি দিচ্ছেন, তো এটা মানুষ জানে না। तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं किसको, आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है,
फिर इस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ। बाबा এখন আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে তোমাদের 84 জন্মের চক্র কমপ্লিট হলো। अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे ना, अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। बाबा বলছেন যে পশ্চিম বঙ্গালে কি হয়, যে যখন মানুষ দেখে যে একে আর বাঁচানো যাবে না তখন তাকে গঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া হয় যাতে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। বলছেন যে এখানে অনেক মূর্তি পুজো হয়, আবার 4 দিনের অন্তরে মানুষ গঙ্গাতে দিয়ে দেয় মূর্তিগুলোকে আর বলে যে ডুবে যাও মা। तो अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया ही डूबनी है। बाबा বলছেন যে पूर्ण दुनिया ही পুরোটাই ডুবে যাবে। फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, तो यह सब हालतें आनी हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। तो यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। বলছে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সারা পৃথিবীতেই হবে। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है, अनेक रकम मृत्युर आलादा आलादा रूप देखा जाबे। बम्स में भी जहर भरा हुआ है, बमगुलो जेटा फेलबे सेटातेও पॉइजन थाकबे। थोड़ी बांस आने से ही बेहोश हो जाते हैं। एकटूखानी মানে নিঃশ্বাসে যদি সে বম পড়ার গন্ধ নেওয়া হয় তাহলে এত বিষ থাকবে যে মানুষ তাতেই মরে যাবে বা একদম বেहोश হয়ে যাবে। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं, बाप तो नहीं कराते। বলছে এত যে এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহাবিনাশের এত তাণ্ডব লীলা চলবে তো মানুষ ভাবছে এগুলো ভগবান করাবে, কিন্তু বাবা বলছে আমি করাই না, আমি এত দুঃখ কাউকে দিতে পারি না। यह ड्रामा में नोंद है। বলছে ড্রামাতে এটা ফিক্স আছে। कोई पर दोष नहीं देंगे, ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटी जाएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। बाबा বলছেন যে পুরনো দুনিয়া থেকে বুদ্ধিযোগ পুরো সরিয়ে দেওয়া এটাকে বেহদের সন্ন্যাস বলা হবে। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं ना, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। বলছে এমন কিছু কাজ করো না যেটাতে বাবার নিন্দা হবে। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। বলছে দেহ থেকে ডিট্যাচ হয়ে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है ना। बाबा बोलছেন যে सारा सृष्टिर पिता तो একজনই আছেন। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। बाबा বলছেন যে মানুষ জানেই না যে নতুন সৃষ্টির স্থাপনা কিভাবে হবে, এবং শাস্ত্রে দেখিয়েছে যে পুরো প্রলয় হয়ে গেছিল,
তারপরে এক অশ্বত্থ গাছের পাতায় কৃষ্ণ আঙ্গুঠা চুষতে চুষতে এসেছিল। তো বাবা বলছে এটা ছোট অশ্বত্থ গাছের পাতাতে কি করে কৃষ্ণ আসতে পারে? তো বাস্তবে এই পুরো ভারতবর্ষের যে ম্যাপটা হবে সেটা একটা পাতার মতন হবে, আর তার প্রথম রাজকুমার হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তো এইভাবে তারা দেখিয়েছে। तो अभी तुम्हें चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं आत्मा ने 84 जन्म लिया। बाबा বলছেন যে আত্মা যখন 84 বার জন্ম নিচ্ছে তো তার 84 বার রং রূপ চেহারা শরীরের আকৃতি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। शरीर तो बदलते जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। सत्ययुगे सबाई शतो प्रधान थाके, तारपरे त्रेताते शतो, दापरे रजो और कलिते तमो। तो चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। বলছে অনেকেরা বলে না যে বাবার কি দরকার ছিল যে 84 চক্রে আমাদেরকে এনেছে। लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। বলছে সৃষ্টি চক্র তো এরকম অনাদি তৈরি হয়ে আছে, আমি কাউকে 84 চক্রে আমি আনছি না, এটা সৃষ্টি কাল চক্রেরই নিয়ম। तो इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है ना। বলছেন মানুষ হয়ে ड्रामार आदि मध्य अंत के यदि जानछे ना तार माने तारा नास्तिक। तो जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना। বলছে যারা বড় एग्जाम पास करे तो तादेर दिले कत खुशी है। हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। বলছে তোমরা জানো যে লক্ষ্মীনারায়ণ কিভাবে হয়েছে, তারা পূর্ব জন্মে আগে এই জ্ঞান যোগ শিখেছে, তবেই তারা এত শ্রেষ্ঠ देवी देवता হয়েছে। तो इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया तो बता नहीं सकेंगे। বলছে বড় বড় মন্দিরে যাও এবং বড় বড় পণ্ডিত বিদ্বান আচার্যকে জিজ্ঞেস করো যে লক্ষ্মীনারায়ণ এত শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ কি করে পেল, তো ওরা কিছুই বলতে পারবে না। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने। আমরা বাবাকে বলি না বাবা আমরা 5000 বছর আগেও তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তো বাবা জিজ্ঞেস করছে কেন দেখা করেছিলে? तो स्वर्गेर वर्षा नेवार जोन्ने। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि होते हैं, यह जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है, सत्य नारायण की सच्ची कथा है ना। तो यह भी तुम समझते हो राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है ना। तो यह भी तुम समझते हो राजाई स्थापन हो रही है। बाबा पूछते हैं हिम्मत है राजाई लेने की। बाबा जिज्ञेस करछेन जे राजाई नेवार हिम्मत आछे? कहते हैं बाबा क्यों नहीं,
हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। বলছে বাচ্চারা বারবার নিজের চেহারাতে ফেসে যাচ্ছে, নিজেকে आत्मा भापते ही पारছে ना। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। बाबा बोलছেন যে लौकिक बाबा के परम पिता बोला হবে না। सुप्रीम परम पिता तो एक शिव बाबा ही आছেন। तो परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वहाँ गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। বলছে তোমরা পাঞ্জাবিদের কাছে গিয়েও বলো যে वाहे गुरु এটা शिव बाबार জন্যই বলা হয়। ग्रंथ साहेब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। बाबा বলছেন যে শিখ ধর্মের যে গ্রন্থ সাহেব তার মধ্যে শিব বাবার পুরো মহিমা লেখা আছে, যেটা অন্য কোনো গ্রন্থে এতটা নেই। जप साहेब सुखमणि में है, एक ग्रंथ আছে सिख धर्मेर जप साहेब सुखमणि, तो यह बड़े अक्षर ही दो हैं। तो बाप कहते साहेब को याद करो तो तुमको 21 जन्म सुख मिलेगा। বলছে साहेब হচ্ছেন बाबा, तो আমাকে স্মরণ করো तो 21 जन्मेर भरपूर सुख पावे तुमरा। तो इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। तो बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफ़र हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है और कोई को यह पता नहीं कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता है। এখন ক্রিসমাস ডে আসছে, তো বাবা ক্রাইস্টের জন্য বলছেন। তো ক্রাইস্টের জন্য বাবা বলছেন যে ওনাকে দেখানো হয়েছে যে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল বা ওনাকে খুব কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, ওনার হাতে পায়ে কিল ঠোকা হয়েছিল। তো বাবা বলছে নতুন আত্মা যে পরমধাম থেকে প্রথম এসছে, সে তো কোনো খারাপ কর্মের অ্যাকাউন্ট নিয়ে আসেনি, তাহলে সে এসে এত শাস্তি ভোগ করতে পারে না। তো ওনার জন্য যে দেখানো হয়েছে এত কষ্ট ভোগ করেছে, সেটা যার শরীরে ক্রাইস্টের আত্মা এসেছিল সে আত্মা কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু ক্রাইস্ট পায়নি। तो क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े किया जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं। বলছেন যার মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল তাকে ক্রসে ওঠানো হয়েছিল। क्राइस्ट को नहीं, वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। क्राइस्टेर आत्मा অন্য জন্ম নিয়ে খুব বড় পদ পাচ্ছে বা পপ হয়ে যাচ্ছে। पॉप के भी चित्र है ना। इस समय वह सारी दुनिया बिल्कुल ही बर्थ नॉट ए पेनी है। বলছে কোন পুরো দুনিয়াই একদম কোনো কাজেরই না, কোনো মূল্য নেই। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। এখন তোমরা একদম খুবই মূল্যবান হচ্ছ। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। বলছে কেউ কোটিপতি বা খুব ধনী যারা আছে তারা এটা যেন না ভাবে যে আমাদের নাতি পুতি আমাদের ধন খাবে, আমরা যা ইনকাম করে যাচ্ছি তারা বসে বসে খাবে। বলছে কারোই বারিশ বা কারোই নাতি পুতি খেতে পারবে না, দুনিয়ারই তো বিনাশ, পুরো দুনিয়ারই শেষ, তো কে খাবে। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। বলছে তোমরা নিজের হাত ভরপুর করে যাচ্ছ, বাকি सवार हाथ खाली जावे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो, यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। যারা कल्प पूर्वे बाबार ज्ञान एसेছে তারাই আসবে। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे।
तुम ढेर प्रजा बनाते हो। बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। अच्छे बाबार ज्ञान एकटूखानी सुन लो तारा प्रजापदे चले आसबे, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा बोलছেন যে রোজ সকালে বাবা এসে তোমাদেরকে মুরলি শোনাচ্ছেন, तो भक्ति मार्गेও सत्संग सकाल सकाल হয়। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। বলছেন খুব সকাল সকাল যেমন 4টের সময় বা 5টা যখন অন্ধকার থাকে, তো এত সকালে সেন্টারে আসা দরকার নেই, বা একদম গভীর রাতেও আসা দরকার নেই। কেন দুনিয়া दिन प्रतिदिन खराबेर दिखे जाच्छे। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकलें और सेंटर पर आएँ, सहज हो जाए। एजन्य बोलছে যে गली गलिते एत काछे सेंटर खोलो जाते प्रत्येकराई काछे काछे सेंटर पाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। अच्छा যখন তোমাদের খুব বৃদ্ধি হয়ে যাবে তখন রাজধানী স্থাপন হবে। तो बाप समझाते तो बहुत सहज हैं, यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं वही माला के दाने बनते हैं। বলছে যে সেবা করে অনেককে आप समान বানায় তারাই মালার দানা হতে পারে। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। বলছে আরও কাম বাসনা মানুষের মনে খুব জোর সোরে বাড়বে। तमो प्रधान बनते जाते हैं, यह दुनिया बहुत गंदी है। বলছে दुनिया ही হচ্ছে एकदम নোংরা। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, यह खातरी है, यह खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहाँ जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। बाबा बोलছেন যে বাবাই সবাইকে পরমধাম নিয়ে যাচ্ছে, বাকি যত ধর্মপিতারা আছে তারা কোনো মেসেঞ্জার বা पैगंबर হয়ে তারা প্রত্যেক আত্মাকে পরমধাম নিয়ে যাচ্ছে না, তারা তো পরমধাম থেকে নিচে নিয়ে আসছে। তারা মৌমাছি রানীর মতন যখন তারা নিচে আসছে তো তাদের ধর্মের যে আত্মাগুলো তারাও নিচে নামতে শুরু করছে। তো তারা পরমধাম থেকে আত্মাগুলোকে নিচে নিয়ে আসছে, কিন্তু পরমধাম নিয়ে যেতে পারছে না। নিয়ে যাওয়ার কাজ একমাত্র বাবাই করছেন। तो जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना, तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते।
शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार 1 नम्बर पॉइंट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। বলছেন এই দেহের নাম রূপ থেকে নিজেকে ডিট্যাচ করে নিজেকে বারবার ছোট্ট सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा भावो। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। বলছে এমন চলন চলো না যেটাতে সতগুরুর নিন্দা হবে। 2 नंबर पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। বলছে মালার দানা হওয়ার জন্য অনেককে आप समान বানানোর सेवा करते হবে। आंतरिक खुशी में रहना है। বলছে आंतरिक खुशीते থাকো कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं, कि আমরা রাজাই নেওয়ার জন্য পড়ছি। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। আজকের वरदान, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। বলছেন কল্যাণকারী বৃত্তি দ্বারা সেবা করে সকল আত্মার দোয়া প্রাপ্ত করো। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल सदा महादानी रहेंगे। বলছে যেমন মানে লক্ষ্য থাকে সেরকমই কাজ হয়। তো লক্ষ্যই হচ্ছে আমরা বিশ্ব কল্যাণকারী, তো বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মার দ্বারা কোনো অকল্যাণের কাজ হতে পারে না। তো যদি আমরা নিজেকে কল্যাণকারী ভাবছি তো আমার দ্বারা সমস্ত কাজ এমনই হবে যাতে সকলের কল্যাণ ভরা থাকবে। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आज के स्लोगन, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। বলছে সাধনের আকর্ষণ সাধনাকে খণ্ডিত করে দেয়, এই জন্যে সাধনা মূরত হও, সাধনের পিছনে ছোট না। ওম শান্তি। আজকে সতগুরুবার, আজ আমরা সতগুরু বাবাকে ভোগ লাগাবো এবং সমস্ত কার্মিক যে বিভিন্ন রকম রোগ শোকের ভোগনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা যত সতগুরু বাবারকে ভোগ অর্পণ করব এবং সেই ভোগ আমরা খাবো, তত আমাদের এই ভোগনাগুলো দূর হবে। ওম শান্তি।